making of a galvanometer and detecting a current flow, and second is making a wave machine. Okay, first we'll study about the making of a galvanometer. He'll explain you. What we use in laboratory is this galvanometer. It is made up of two concave magnet pieces. There is a soft iron core inside, which is rolled with a copper wire. So when current passes through this wire, this copper wire experiences shock, and due to this shock, we see the deflection in the galvanometer. This is working of a galvanometer which we use in the laboratory. We can clearly note that this copper coil is moving, due to which the deflection is shown. So we have tried exactly opposite this. We have kept this copper coil stagnant, and we are trying to deflect this magnet. So at this time, at this instance, only Earth's magnetic field is acting on this magnet, so it is facing north-south direction. As soon as I complete the circuit, current will flow through this circuit. When current will flow through this circuit, a magnetic field will be created due to the current flowing through the circuit. So this magnetic field created due to the coil and the Earth's magnetic field both are perpendicular to each other, and what we see here is the resultant deflection of both this magnetic field on a single magnet. So this is actually a tangent law which I have demonstrated here. So next is one question. So basically, you are using this device, pointing device, but every time whenever you have to check the deflection, you will have to keep it in only the direction, right? In the north side direction. Because what is the principle of tangent galvanometer? So what we see is the deflection. If we north-south direction means it is the magnetic field of the this Earth's magnetic field. Earth's magnetic, but every time we will have to adjust it accordingly, right? Yes. First we have to adjust it like this. So actually it is we can clearly found out. The formula is given by B is equal to BH tan theta. So tan of what deflection we get, that is into magnetic field of this. So we will get that. So it is actually law itself states that it should be in this north-south direction. But every time you won't get such a scenario, right? That's when you keep a magnet suspended in open air, so it will automatically align in north-south direction. But you're trying to make a galvanometer basically, and it should be at zero whenever there is no current passing, right? So at this moment, if I am using this galvanometer that you have created, I have to just place it in north-south direction. That is, and only after that I can test, right? Or else if I keep like this, it will point to something 10 or 20. So that is what I am asking basically. That every time we will have to measure where the north and south is, and then only we have to. What is the concept of a magnet? Magnet always aligns. When you suspend a magnet, it will always align in north-south direction. So we are taking the reference as north-south direction. We are keeping that a reference point that north-south direction is there, and we are measuring from the north-south direction so deflection will be there. You can even what you are telling, I am getting an answer. अपने को north-south direction में align करना जरूरी है. So अगर देखो यहाँ पे लग रहा है north-south direction, so you make any other direction, but ये इसको reference point है, इसके through में angle measure. So it will give, but north-south direction we can find because it is a property of a magnet. मेरा नसीब ही खराब है, कल आए थे नाम सही मोशन करके बोलो ना, उनको वीडियो लेना है इसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, समझा नहीं जो बोल रहे हो ना, मोशन करके बोलो ना तो आवाज़ आ सके हम लोग का कोशिश So you can just explain. Okay, I'm sorry. Here we are trying to demonstrate the properties of a wave. Generally, when a common man sees a wave, suppose you are just SSC pass, आपको सिर्फ basic knowledge इतना ही है कि everything is made up of matter. Whole universe it contains either atom, molecules, some of the other particles matter से बना हुआ है. Okay. When I am saying everything is made up of matter, that means I am also made up of matter. मेरे अंदर भी कुछ matter content है. Okay. So if I am moving towards my sideways, means मेरे अंदर का जो matter है वो भी मेरे along वो sideways move हो रहा है. Okay. That's what I think. मैं बराबर बोल रहा हूँ ना. Okay. So अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा matter मेरे साथ move हो रहा है, so जब wave बनता है, जब आप wave को travel करते हुए देखते हो, तो आपके दिमाग में ये question आता है कि अगर मेरे साथ में मेरा matter move कर रहा है, तो wave के साथ में wave का matter move कर रहा होगा. Because everything is made up of particle. So अगर wave travel कर रहा है, तो उसका particle भी travel कर रहा है. Okay. So यहाँ पर एक physics का concept है जो हम आप demonstrate करके बताएंगे. What is the difference between the common man's thinking and actual concept that the physics applies? यहाँ पर you can see we have tried to convert the electrical energy into mechanical energy and make a wave maker.
बिकॉज या वेव्स को बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, या तो यू नीड अ परमानेंट सोर्स। फॉर एग्जांपल जो सन है वो कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेज है वो ट्रांसमिट करता रहता है। इधर यू नीड अ सोर्स और यू नीड अ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो वेव बना रहा है। जैसे मैं पेंसिल हटा दूंगा वेव्स बनना बंद हो जाएगा, सो यू नीड अ डिस्टर्बेंस टू क्रिएट दिस वेव्स। ओके, दिस पेंसिल इज एक्टिंग एज अ वेव मेकर। आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो जो प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली नाउ। सो जब सेंटर से वेव बनता है इट ट्रैवल्स टूवर्ड्स द पेरीफेरी। वेव ट्रैवल्स जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ से दूर ट्रैवल होता है। ओके, सो सेंटर से वेव बन रहा है टूवर्ड्स द पेरीफेरी जा रहा है। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मटीरियल। जो मटीरियल यानी कि वाटर से अगर वेव ट्रैवल कर रहा है वाटर के सर्फेस पे, तो हम वाटर का पार्टिकल अपनी आंखों से स्टडी नहीं कर सकते। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा H2O मॉलिक्यूल। सो हमको एक रेफरेंस चाहिए ताकि हम वो प्रॉपर्टी स्टडी कर सके उस चीज़ की। इसके लिए हमने वाटर पे जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहा है बहुत ही छोटा छोटा ब्लैक कलर का जो डस्ट पार्टिकल हमने सस्पेंड किया हुआ है वो एक रेफरेंस के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। ओके, वाटर का एक अलग पार्टिकल होगा, डस्ट का एक अलग पार्टिकल होगा। क्या दोनों पार्टिकल सेम है? अलग है। ओके, अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए आप वो दोनों पार्टिकल को एक ही अज्यूम कर लो। तो क्या आप अज्यूम कर लोगे? क्यों नहीं करोगे? मतलब आप बोलोगे भाई आप दोनों पार्टिकल अलग है, हम उसको एक ही अज्यूम नहीं कर सकते। ओके, ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको रिलेटिविटी पे जाना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज रिलेटिव मोशन? क्या किसी को पता है रिलेटिव मोशन क्या होता है? ओके, देखो दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, एक मेरा हैंड है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ओके, व्हेन माय हैंड इज मूविंग अप एंड डाउन विथ रिस्पेक्ट टू माय हैंड दिस मशीन इज ऑल्सो मूविंग अप एंड डाउन। ये खुद से ऊपर नीचे नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज ये मेरे कॉन्टैक्ट में है इसके लिए मेरे रिलेटिव में ये ऊपर नीचे हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेटिव मोशन, that when one object performs a motion with respect to that one object, the neighboring object which is in contact with that object, it also performs a similar type of a motion. ये होता है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। अब आप रिलेटिव मोशन का वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करो। आप ये एज्यूम करो कि जो डस्ट पार्टिकल आपने स्प्रिंकल किया हुआ है ना मटेरियल के, सॉरी करेक्ट, वेरी गुड, जो वाटर का पार्टिकल है ना उसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल अब बैठ गया। अब ये दोनों को एक सिस्टम कंसिडर करो, अब ये रिलेटिव मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, सो अगर मीडियम का पार्टिकल यानी वाटर का पार्टिकल ऊपर नीचे होगा, मूव होगा, तो ये डस्ट पार्टिकल भी मूव होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव मोशन बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके कॉन्टैक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव होना चाहिए। देखो, अब जो सेंटर से वेव बन रहा है और जो डस्ट पार्टिकल्स जो हमने सस्पेंड किया हुआ है, क्या वो डस्ट पार्टिकल टुवर्ड्स द पेरीफेरी मूव हो रहा है या अपने जगह पे ही स्टेशनरी है? दे आर स्टेशनरी, डेफिनेटली दे आर स्टेशनरी, यू कैन सी दैट। ओके, ये हमको बता रहा है कि अगर डस्ट पार्टिकल जो स्टेशनरी है मतलब मीडियम का पार्टिकल वो भी अपनी जगह पे स्टेशनरी है, राइट? तो मतलब वेव जब ट्रैवल कर रहा है तो मीडियम का पार्टिकल दे आर स्टेशनरी अबाउट देयर पोजीशन, दे आर नॉट मूविंग अलॉन्ग विद द वेव। सो व्हाट इज द थिंग व्हिच इज मेकिंग दिस वेव प्रोपोगेट? ये वेव क्या है, क्या बना क्या रहा है, ये हाउ इट इज ट्रैवलिंग? सो द वेव इज नथिंग बट प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। अब आप बोलोगे ये एनर्जी कहाँ से आया? कोई भी इंसान अपना खुद का एनर्जी ऐसे ही फालतू में थोड़ी वेस्ट करेगा। सो एक एटम है उसके पास खुद का एक इंटरनल एनर्जी है, सो वो अपना एनर्जी बिना किसी मतलब के वेस्ट नहीं करना चाहते। सो आप देखो यहाँ पर डिस्टर्बेंस के फॉर्म में हमने उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से वो पार्टिकल क्या हो रहा है ना, एक्साइटेड हो रहा है। अब एक आपको आपका नाम क्या है? विजय। अब मैं विजय को बोलूँगा भाई तेरे को 24 घंटा दिन का खाना खाना है, क्या वो खा लेगा 24 घंटा कंटिन्यू खा रहे नहीं खा सकता, बिकॉज उसका एक लिमिट है, खाना खाने का एक लिमिट है। तो वैसे ही हर एक पार्टिकल का एनर्जी को सस्टेन करने का एक लिमिट होता है। आप एक पार्टिकल कंटिन्यूसली ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते उसके लिमिट के पास, वरना वो फट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमको ये नहीं चाहिए कि मीडियम का पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो पार्टिकल क्या करता है ना, अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए वो जो एक्सटर्नल एनर्जी आपने दिया तो उसको जितना चाहिए होगा ना, थोड़ा जैसे वो थोड़ा खाएगा फिर वो बोलेगा बस हो गया, तो थोड़ा वो एनर्जी लेगा और वो अपने एक्साइटेड होकर ऑसिलेट करना चालू कर देगा। इट विल परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जिससे क्या होगा ना, थोड़ा एनर्जी उससे ले लिया और फिर भी एनर्जी उसके पास बचा हुआ है, वो एनर्जी वो क्या करेगा ना, अपने नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसमिट करता रहेगा कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी अब मेरे से संभालने जाता, अभी थोड़ी देर के लिए तू पकड़। तो ऐसे एनर्जी वो ट्रांसमिट करता रहता है और वही एनर्जी है जो वो आपको वेव के फॉर्म में दिख रहा था। तो वेव इज नथिंग बट प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉट द एक्चुअल प्रोपोगेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग। दैट इज द सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन वी आर ट्राइंग टू मेक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।